Hello students, welcome to my class. I, Dr. Swati Pandya, welcomes you. Today, my dear student, we are going to start with another important topic of the same chapter, that is molecular study or molecular basis of inheritance, that is DNA fingerprinting. It is very common word nowadays, and to solve many problems we are using this technique. So what is DNA fingerprinting? Fingerprints, they are unique, and as well as DNA are also unique in each and every individual. So the unique DNA, it is the uniqueness of each and every person. We all know that the chromosomes, 23 pair of chromosomes are present, and chromosomes contain the chromatids, that means sister chromatids, they form a chromosome. Chromatids contain chromatin, it is made up from chromatin material. And if we see the chromatin material, solenoid fibers are there. Solenoid fibers, they contain nucleosome. We have learned this term in packaging of DNA in earlier sessions. You can refer that. Then nucleosome, it contain DNA. And a fragment of DNA, एक छोटा सा piece DNA का, उसको हम gene बोलते हैं. So that is gene. So here we are dealing with DNA. So first of all, we have to identify the nucleotide sequence, that is DNA or a gene. And we all know, we have learned in earlier sessions about when we were talking about Human Genome Project, we have learned that 99% of the DNA, that is same in every individual, in each and every individual. Only zero point 0.1 difference is there. And here in this topic, we are dealing with this 0.1 difference. So I've written over here 99%, 99.9% of the base sequences among the human are same. So this difference only we are dealing here. It is useful in DNA fingerprinting. And as we all know, just to solve the criminal cases majorly, and the development of forensic science nowadays, it is very common, and DNA fingerprinting is also very common. So this technique, it was first of all developed by a scientist named Alec Jeffrey, that we'll talk about later. But right now, let us see some few points which are important to understand DNA fingerprinting. So DNA fingerprinting will involve, first of all, identifying differences in some specific regions in DNA sequence. So this 0.1 difference, तो जो डिफरेंस की डीएनए सीक्वेंसेस हैं उन पे ही हम फोकस करेंगे. तो सबसे पहले हमको ये डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है. सो कहाँ पे डिफरेंसेस हैं, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई. और जब डीएनए सीक्वेंस को हम देखते हैं तो वहाँ पे हम ये पाते हैं कि कुछ डीएनए सीक्वेंस रिपीट होती हैं. तो कितनी बार कौन सी सीक्वेंस रिपीट हुई, हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग रिपीटिशन होता है. तो इसको ही हम फोकस करेंगे, यहाँ पे उसका ही यूज करेंगे. So here repetitive DNA is focused here, and because in these sequences a small stretch of DNA is repeated many times. मैंने आपको बताया बार बार रिपीट होता है. जैसे मेरे में वो DNA सीक्वेंस में 3 बार रिपीट हो रहा है, किसी और में वो 10 बार रिपीट हो रहा है, किसी और थर्ड पर्सन में वो 5 बार रिपीट हो रहा है. सो दिस नंबर इट वेरीज. तो इसी को हम यूज करते हैं. एंड इवन डिफरेंट पीक्स आर अटेन्ड ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. तो ये सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता है. द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर्ड टू एज सैटेलाइट डीएनए. बल्क डीएनए में पूरा डीएनए आएगा, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जब उसके कर दिए जाएंगे तब उसमें से सैटेलाइट डीएनए हम चूज करते हैं. कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट्स हम यूज करते हैं. एंड हियर डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ दिस, डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन, जिसके अंदर ए पेयरिंग विद टी हमको मालूम है, एंड जी पेयरिंग विद सी आपको ये डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ लिया है. इवन लेंथ ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, देन सैटेलाइट डीएनए, दे आर क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज लाइक माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स एक्सेट्रा. तो इस तरह से नाम दिया जाता है. Now let us see these sequences. Normally they do not code for any protein, but they form a large portion of human genome.
क्योंकि हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं वो सिर्फ 2% कोड्स हैं, मीन्स बेस पेयर्स हैं, ओनली 2%। तो बाकी का क्या, तो बाकी में जो रिपीट हो रहे हैं उसको हम काम में लेंगे। So these sequences show high degree of polymorphism. So polymorphism का यहाँ पे यूज करेंगे जहाँ various forms present हैं and they form the base of DNA fingerprinting. So the sample which is taken, कहाँ से हम sample लेंगे DNA fingerprinting को करने के लिए? हम कुछ samples इकट्ठे करते हैं। Majorly क्या होता है, जहाँ पे criminal cases या rape cases or any other such type of cases are, just to solve them, certain samples they are taken from that particular area. तो वो sample हो सकता है किसी भी प्रकार का tissue, like it may be blood or any hair follicle or skin, even bone, even saliva, sperm, that means semen can be taken, or even nails, they can be used as a sample. So from that individual which shows same degree of polymorphism, they become very useful to identify um, identification, just related with forensic application or forensic science. So in this way, just to solve many of the dispute cases also of paternity और मैटर्निटी, इस तरह के जो पेरेंटल केसेस होते हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए काम में आता है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बार बार ये वर्ड आ रहा है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हियर। अ पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेस ऑफ जेनेटिक मैपिंग, क्योंकि इसी के ऊपर सब बेस्ड है, पूरा टेक्निक इसके ऊपर बेस्ड है। एंड इट इज असेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स इन अ सिंपल फॉर्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म, उसका वर्ड मीनिंग हम देखते हैं, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, उसको हम कंसिडर करेंगे कि जीन्स में कहाँ वेरिएशन है। एंड इट अराइज ड्यू टू म्यूटेशंस, क्योंकि म्यूटेशंस हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हमको बहुत अच्छे से मालूम है। एंड इवन इन जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग्स हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, so even it can spread to the other members of population. So mutation is an important event here. Now let's see how it works, किस तरह से हम प्रोसीड करते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से। so as a DNA polymorphism, if more than one variant, that means alleles we are talking about, at a locus occur in human population with a frequency of 0.01, then in simple terms we can say that inheritable mutation is observed in a population at high frequency and it is referred to as DNA polymorphism. कितने वेरिएशंस जीन में हमने देखे, सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो कितने वेरिएशंस हमको मिले उस पर्टिकुलर जीन से रिलेटेड पूरी पॉपुलेशन में, तो वो होगा उसका डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, नाउ इसका डिटेल तो आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, बट इवन इवोल्यूशन स्टडी करने में, स्पेसिएशन रीड करने में, समझने में भी इसका बहुत ही हेल्प रहता है। Then this technique was initially developed by Alex Jeffrey, as I have said to you earlier. This is the name of scientist. I have not displayed here, आपको बुक में मिल जाएगा। And he used a satellite DNA, जिसको हम DNA probe ऐसा भी नाम देते हैं, which shows a very high degree of polymorphism. इसलिए उसको चूज किया गया एंड उसको एक नाम दिया गया वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, क्योंकि ये जो रिपीट हो रहे थे बार बार सीक्वेंस, उसको ही हमने हाईलाइट करके यूज किया है। सो इट इज नोन एज इन शॉर्ट VNTR. The name of scientist is here Alex Jeffrey, and he used a satellite DNA probe which shows high degree of polymorphism. So here VNTR is used. And what are the steps which are included just for finding DNA fingerprinting? Let us see. सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव समझते हैं, फिर आपको इस फिगर या डायग्राम की हेल्प से मैं समझाने की ट्राई करूंगी। फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, क्योंकि सबसे पहले हमको जो भी सैंपल हमने इकट्ठा किया है उसमें से हमको वो आइसोलेट करना है डीएनए को। डीएनए हमको मिलेगा न्यूक्लियस में से, सो डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट करना है। देन जस्ट टू डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बट उसके पहले मैं एक और स्टेप आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे सबसे पहले उसको एम्पलीफाई किया जाता है, उसकी जेरोक्स कॉपी बनाई जाती है। ठीक है, एम्पलीफिकेशन मीन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले एम्पलीफिकेशन होगा, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन होगा, एंड इवन फ्रेगमेंटेशन के लिए उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हेल्प लिया जाता है। ये चीज़ मैं आपको पहले सेशन में समझा चुकी हूँ, हाउ द स्टिकी एंड्स दे आर प्रोड्यूस्ड एंड दे कट द डीएनए इनटू अ स्पेसिफिक साइट। और भी डिटेल में हम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरोसिस। एक्चुअली इलेक्ट्रोफोरोसिस एज एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे करंट का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है, एंड द मूविंग डीएनए एक एग्रोज जेल यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर डीएनए फ्रेगमेंट्स को डाल दिया जाता है, एंड जब करंट पास होता है इस मशीन से तो डीएनए अपने अपने डेंसिटी के हिसाब से मूव करता है। तो इस तरह से हमको मालूम है डीएनए इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड सब्सटेंस, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप होता है, सो H3PO4 माइनस, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है, हमको मालूम है। सो इसका हम टेक्निक यूज़ करते हैं। देन ट्रांसफरिंग इट, जिसको बोलते हैं ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ऐसा स्पेसिफिक नाम है। तो सो जस्ट टू ट्रांसफर दिस ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू अ सिंथेटिक मेम्ब्रेन, इसके ऊपर इसका प्रिंट लिया जाता है, जैसे कि नाइट्रोसेल्यूलोज हो सकता है या नायलॉन की मेम्ब्रेन हो सकती है, तो इसके ऊपर इसका ब्लॉटिंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब। प्रोब हमने पहले ही समझा, एक स्पेसिफिकली एक्चुअली रेडियो एक्टिव हम बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी की वजह से ये एकदम हाईलाइट होते हैं, तो उनका हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म में, डीएनए प्रोब का यूज़ करके उसका हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। एंड लास्ट में डिटेक्शन ऑफ दीज हाइब्रिडाइज डीएनए, क्योंकि पहचानना भी ज़रूरी है, तो उसको पहचाना जाता है बाय द टेक्निक ऑटो रेडियोग्राफी। और फिर अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं फोटोग्राफी। तो एक फोटोग्राफ लिया जाता है और इसमें एक्सरे फिल्म का भी यूज़ किया जाता है। जब कोई भी केसेस सॉल्व होते हैं तो हमको कोई प्रूफ देना पड़ता है, तो प्रूफ हम लेते हैं उसका फोटोग्राफ या प्रिंट लेके या एक्सरे फिल्म का यूज़ करके। Now, VNTR belongs to class satellite DNA which are referred to as mini satellites. तो इसी पे हम फोकस करेंगे। उसके पहले हम डायग्राम की हेल्प से समझें। यहाँ पे डीएनए सैंपल है हमारे पास, और इधर आप देख सकते हो ब्लड है, ब्लड सैंपल लिया है, इसका एक्सट्रैक्शन किया, फिर ये डीएनए क्रोमेटिन बोल सकते हैं, डीएनए है, या डीएनए शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए हमने लिया है, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से हम यहाँ कट लगा रहे हैं, तो हमने छोटे छोटे पीसेस में इनको कन्वर्ट कर लिया डीएनए को। यहाँ पे बहुत बड़ा डीएनए था और उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। कट करने के बाद उसको इलेक्ट्रोफोरोसिस या एग्रोस जेल में इनको अलग अलग जो ये भी आप टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, अभी आपको खाली नाम याद रखना है। तो जो लॉन्ग डीएनए होंगे फ्रेगमेंट्स वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वो हैवी होंगे, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो जल्दी से मूव करके इस एंड पे आ जाएंगे। ठीक है, देन इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे मेम्ब्रेन पे। अभी हमने नाम लिया था, हियर यू कैन सी नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन पे हम स्विच ओवर करेंगे इसको, इसका प्रिंट ले लेंगे यहाँ पे। एंड देन इंक्यूबेशन विद लेबल्ड प्रोब्स, यहाँ पे स्पेशली रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब का यूज़ किया जाता है ताकि वो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स को टैग करें, तो ये टैगिंग है एक्चुअली। और फिर इसका प्रिंट लिया जाता है एक्सरे फिल्म पे, तो इस तरह से प्रिंटिंग आता है। ठीक है, इसलिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एग्जैक्टली हमको इस तरह से मिलता है। नाउ लेट अस सी a small DNA sequence is arranged tandemly in many copy numbers, and then the number of repeat shows very high degree of polymorphism, क्योंकि अगर वो बार बार रिपीट होंगे दैट मीन्स बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर कम होंगे, मैंने आपको अभी बताया था कि मेरे
अगर मेरा डीएनए लेते हैं और उसमें देखते हैं कि 3 बार रिपीट हो रहा है, किसी दूसरे पर्सन में 10 बार रिपीट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जिस मेंबर के अंदर 10 बार वो वीएनटीआर मिले हैं, तो उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा है, राइट? सो एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ वीएनटीआर वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 टू 20 किलोबाइट, तो इतना वैरी करेगा वो. Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autogram gives many bands of different size. हमने अभी देखा बहुत सारे बैंड्स मिलेंगे, तो इस तरह से बैंड देखे जाते हैं, उसको भी कंपेयर किया जाता है जब लास्ट में मिलते हैं. Then these bands they give a characteristic pattern of an individual DNA. जो सस्पेक्ट होता है उसके साथ मैच किया जाता है. सपोज हमको लगा कि इसने ये खून किया है या रेप किया है, वॉट जो भी केस है, तो उसके साथ उसको मैच किया जाता है और देखा जाता है कि उस पर्सन का ही डीएनए है या नहीं. इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स. उनके अंदर सेम होगा, आइडेंटिकल ट्विन्स. Then the sensitivity of this technique has been increased by the use of polymerase chain reaction, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PCR. ये एक्चुअली एक इन विट्रो टेक्निक है जो लेबोरेटरी में परफॉर्म होती है, और इसकी वजह से इसकी जो एक्यूरेसी है, इसका जो इजीनेस है, वो इंक्रीज हुआ है नाउ डेज, और काफ़ी अच्छी तरह से. और इवन आपने देखा होगा फॉरेंसिक साइंस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है अपने आप में, उसके सेंटर्स भी बहुत बढ़ गए हैं, and it is a scopeful branch. Now let us see with the help of diagram. I will explain the same thing which we have understood right now. So DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis. हमने देखा बहुत सारे सैंपल हैं, कोई भी एक सैंपल चलता है, सारे सैंपल होने जरूरी नहीं है. एक बार रिपीट करें हम कौन कौन से सैंपल्स होते हैं मोस्टली. तो सैंपल्स आर मेनली ब्लड, you can take hair follicle, even nails, skin part, bone, saliva or semen. Any of the sample can work. So in addition to application in forensic science, it has much wider applications such as in determining population and even genetic diversities. इसके साथ साथ और भी जो एप्लीकेशन फील्ड्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगी. एक्चुअली दिया ही है आपके बुक में, बट मैं आपको 5-6 पॉइंट्स एक साथ बताना चाहती हूँ. इसमें सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया, जस्ट टू सॉल्व द क्रिमिनल केसेस. देन इवन कभी कभी जो पेरेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं, किसकी मदर है, किसके फादर हैं, कौन बेटा है, बेटी है, लाइक दैट. सो पेरेंटल इश्यूज को भी सॉल्व करने में मदद करता है. देन नेक्स्ट, कभी कभी इंश्योरेंस क्लेम करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प ली जाती है. देन जस्ट टू सॉल्व रेप केसेस, इवन इवोल्यूशनरी स्टडीज, इवोल्यूशन या स्पेसिएशन, उसके लिए भी हेल्पफुल रहता है. लास्टली एग्रीकल्चरल साइंस में भी इसका यूज़ किया जाता है. एंड इवन अगर आप इस डायग्राम की मदद से देखते हो, सबसे पहले मैं आपको पहले समझाना चाहूँगी. पेरेंटल क्रोमोसोम्स दे आर शोन, ये फादर का है, ये मदर का है. इसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 7 यहाँ पे शो किया है. एंड स्पेशली हियर द क्रोमोसोम 2 means chromosome 7, chromosome 2 and chromosome 16 they are compared. This is DNA from individual A. किसी भी एक इंडिविजुअल का ये अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है उनको देखा गया है. इसी तरह से DNA फ्रॉम इंडिविजुअल B, ठीक है, ये B आप देख सकते हो इन दोनों में कितना डिफरेंस है. ये उसका पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये उसका मैटरनल क्रोमोसोम है. हमेशा क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो ये पेयरिंग शो करता है. ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, राइट. ये क्रोमोसोम नंबर 7, ये क्रोमोसोम नंबर 2 एंड दिस इज क्रोमोसोम नंबर 16. अब पूरी टेक्निक्स यहाँ पे की है और नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स को हाईलाइट किया है. और यहाँ पे ये जो पिक्चर लिया है लास्ट में, हमने देखा अभी किस तरह से पूरा टेक्निक कंप्लीट करके, इस टेक्निक को पूरा कंप्लीट करने के बाद ये जो डायग्राम हमको मिला है, एक्सरे जो फिल्म हमको मिला है, वो फिल्म हमने यहाँ पे लास्ट में बताया है. दिस इज शोइंग द सेम फिल्म. ओके, दिस इज एम्पलीफाइड रिपीट्स विच इज सेपरेटेड बाय द साइज ऑन जेल विच गिव्स डीएनए फिंगरप्रिंट्स. तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 अप टू 12 नंबर्स दे आर शोन, नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, और इनको कंपेयर किया है. तो अगर आप कंपेयर करते हो, ये सी सैंपल है जो हम वर्क कर रहे हैं,
तो वो किसके साथ मैच कर रहा है, आप आराम से इसको देख के बता सकते हो कि ये इस इंडिविजुअल के साथ ये मैचिंग है, मींस बी. दैट मींस द सस्पेक्ट इज yes. So the two alleles of the chromosome also contain different copy numbers of VNTR, and it is clear that banding pattern of DNA from crime scene matches with individual B and not with A. तो ये जो क्राइम सीन पे हमको सैंपल मिला था उसका ये जेल हमने जेल फॉर्म में फिंगरप्रिंट्स को मैच करने की कोशिश की है. तो ये मैच किससे हो रहा है, ए से नहीं हो रहा है, बी से हो रहा है. आप देखो इसका जो सैंपल मिला है वो ऐसा है, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं. दिस इज मैचिंग, दिस इज मैचिंग एंड दिस इज मैचिंग. सो इन दिस वे वी कैन से that the fingerprinting it is helpful in solving many cases. So today we have learned a very important technique, DNA fingerprinting. It is important for examination point of view also, and even it can be helpful in your further studies if you go for this field. So hope you liked this session today, and this was the last session of this chapter. And in next session I will be providing you some of the exercises and even some uh, important points or topics which are regarding to your exam. So hope you will learn all these things properly and do your work in time. Till then, take care. Bye bye, students.